based on string. There are some primary functions which are based on a string. That comes under a string class. But there are some functions which based on characters only. That comes under character wrapper class. Okay. So one second. These are the list of functions which comes under character wrapper class. Capital A. Suppose I want to check the given character is in uppercase or not. It will produce true or false accordingly. Suppose I want to check whether the given character is digit or not. So accordingly it will produce true or false. So you can see that one is a digit, so it is producing true. Capital X is not a digit, so it is producing false as an output. A small a character is letter. This library function check whether the passing character is alphabet or not. Means whether it is coming between the capital A to capital Z or small a to small z. Means both the letter will be checked. Either the letter will be in uppercase or lowercase, doesn't matter. 1 is not a letter, it's a digit, so it is producing false. Now after that, letter or digit, it will check whether the passing character is letter or digit. Both will be checked. It will produce true if the passing character is letter और if the passing character is digit. दोनों के लिए ये true return करेगा. अगर हमने कोई ऐसा character पास किया जो बेसिकली हमारा डिजिट हो या लेटर, ओके, तो यहां पर ट्रू आ रहा है. जस्ट फॉर अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, लेटर और डिजिट, ये भी हमारा लेटर है, डिजिट नहीं है कोई बात नहीं, बट लेटर है. बट एस्ट्रिक इज नॉट अ लेटर और इज नॉट अ डिजिट, सो इट इज प्रोड्यूसिंग फॉल्स. अंडरस्टैंड? ओके. नाउ Yes, after that white space, I will check this library function. Just give me I want to do a small example. 1 second. Let me start BlueJ. The BlueJ is opening, and which yeah, this is our basically. I just want to remove all this code. Fine. Okay. Now, look at the example. Hello developers, and you have to answer these few questions. आपको आंसर देना है. Character dot is letter, n dot carrots. Just write down in your copy first of all. आराम से इसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिए. One more bracket should be closed. No, it's fine. Character dot is
uppercase n dot caret 6 n dot caret 6. तो पहले वाले का 4 थे, दूसरे वाले का 2 है. Maintain the silence from your side. Just maintain the silence from your side. Let me complete. I just want to write the few example. Let me complete first. Then I will ask the question. Yes? Okay. 1 minute. Now how you have to reply, आपको कैसे आंसर देना है वो भी मैं बता रहा हूं. पहले आपको ये बताना है कि ये कैरेक्टर डॉट इज लेटर कौन से कैरेक्टर पे अप्लाइड है, और उसके बाद आपको बताना है कि उसका आंसर क्या है. दोनों चीजें अंडरस्टैंड. Okay, very good. Just write down all the combinations and answers. Then I will directly ask. Okay, no problem. सर सर सिंगल इंडेक्स वाला जो सबस्ट्रिंग होता है वो वहां से लेके एक्सट्रैक्ट करता है या उसको इंक्लूड करता है या एक्सक्लूड करता है, जहां से इंडेक्स देते हैं हम लोग. ओके, मुझे इसके बाद बताइएगा कि किसके किसके आंसर्स मैच नहीं. ओके,
दिस इज एक्चुअली द स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। कुछ लोगों ने इसको मेंशन किया है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन को, और wait, please maintain the silence. Lot of disturbance are coming from the side of a student. Now see, okay, fine. Now I just want to solve this question fast, then I have to cover the remaining questions. 0, 1, 2, 3, 4, 5 is your space. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is 12 actually, don't get confused. Actually, the characters are very close. 13, 14, and 15. So when 2 or 3 or 4 or 5 multiple functions are involving in any particular statement, तो what is the starting point? हमें कहाँ से start करना है? Actually ये जो function है वो इस पर dependent है, तो पहले हमें ये वाला part solve करना है, उसके बाद ही हम इस फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। तो n डॉट कैरेट 5, तो 5th पोजीशन पर क्या आ रहा है? स्पेस। एंड स्पेस क्या लेटर है? क्या स्पेस हमारा लेटर है? टेल मी। नो सर। सो इट विल प्रोड्यूस व्हाट? फॉल्स। अंडरस्टैंड? नाउ लेट मी आस्क द क्वेश्चन, व्हाट आर लेटर्स? See, don't get confused. The letters are. This space is 1 second. This space is a character. Is a character, my dear student, is a character, but it is not a letter. Letter means which only lies between capital A to capital Z, small a to small z. That is only the letters. But space is not a letter. It's a character. Hope you understand. Okay. Now. So what is the difference? Sir, what is the difference between char and index of? Caret and index of. Okay. Caret basically used to extract the character on the specified position. Suppose I am using caret 2. Caret 2. Then L will be extracted. Understand? L. Because on the yes, second position L is here. और अगर हम लिखते हैं n डॉट इंडेक्स ऑफ l, तो l का इंडेक्स है 2, तो इंडेक्स ऑफ प्रोड्यूस द पोजीशन और इंडेक्स, एंड कैर एट ही यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर. ओके, तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स. दिस नंबर इज कॉल्ड इंडेक्सेस. ओके, नाउ n डॉट कैरेट 6 पोजीशन पर क्या है? डी, कैपिटल डी. तो क्या कैपिटल डी हमारा अपर केस है या नहीं है? Sir, true. डी, कैपिटल डी इज अपर केस, so it will produce true. Understand? अब हमको थोड़ा आगे चलना है, बट आगे चलेंगे तो हमारे इंडेक्सेस आउट हो जाएंगे. नो प्रॉब्लम. देखो यहां पर सबसे पहले क्या है? n डॉट सबस्ट्रिंग 5, यानी 5 पोजीशन से अगर हम सब कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे, सब कुछ, तो 5 पोजीशन से अगर हम सब कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा हम इसको पीछे लेते हैं, तो 5 पोजीशन पर हमारा आ रहा है स्पेस, तो स्पेस से इतना पार्ट एक्सट्रैक्ट होगा. इतना पार्ट एक्सट्रैक्ट होगा, साथ में एक स्पेस भी होगा. स्पेस को हम अंडरस्कोर से डिनोट कर रहे हैं, दिस माय स्पेस. अब इतना पार्ट हमारा n डॉट सबस्ट्रिंग 5 से एक्सट्रैक्ट होगा. अब इसमें से 1 पोजीशन का कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करो, तो इसमें से 1 पोजीशन का कैरेक्टर कौन सा है?
Sir, D. D. Capital D. Very good. Capital D है. Very good. तो capital D is present on one position. तो क्या capital D lower case है? No, sir. No. No, sir. Lower case नहीं, ये तो capital D है ना, तो it is an upper case actually, not in lower case. No problem. So it will produce false. Understand? Now, what about this n dot caret 5? 5 position से अगर हम character को extract करेंगे, तो 0, 1, Blank space. 3, 4, 5. ये है 5. तो 5 पोजीशन पर एक्चुअली हमारा जो है वो स्पेस आ रहा है, और ये कह रहा है कि कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, यानी कि जो कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हुआ है क्या वो वाइट स्पेस है? वाइट स्पेस इज द अनदर नेम ऑफ स्पेस. स्पेस को ही हम लोग वाइट स्पेस भी कहते हैं. इट इज द सिनोनिम ऑफ स्पेस. अंडरस्टैंड? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है वी ऑल आर. जस्ट 1 सेकेंड प्लीज. और ये जो बीच के गैप्स होते हैं ना, इन्हें हम लोग व्हाइट स्पेस कहते हैं. एक्चुअली इन्हें व्हाइट स्पेस भी कहते हैं, इन्हें स्पेस भी कहते हैं. अगर हम लाइब्रेरी फंक्शन वाइज बात करें तो व्हाइट स्पेस, इन्हें व्हाइट स्पेस कहा जाता है. तो कैरेक्टर डॉट इज व्हाइट स्पेस चेक करता है कि जो कैरेक्टर आप पास कर रहे हैं वो व्हाइट स्पेस है या नहीं. तो एक्चुअली जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो व्हाइट स्पेस है, तो इट विल प्रोड्यूस ट्रू. और व्हाइट स्पेस की जो आस्काई वैल्यू होती है वो 32 होती है. अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड द फोर्थ वन? Yes, sir. Answer please, reply everyone. Most of the students are not Yes, replying. sir. Yes, sir. Okay, fine. Why this function is producing some runtime error? Okay, बहुत जल्दी से एक बहुत ही small way में बता रहे हैं कि there are 3 types of error. Number 1 is your syntax error. Syntax error arises due to violation of syntaxes. Don't worry, in a complete chapter I will cover all these errors. The second one is logical error. The third one is runtime error. Runtime errors always comes when the program will come in the running environment. Okay, जब हमारा प्रोग्राम आउटपुट देने वाला होता है तब ये एरर्स आती हैं. Okay, fine. Let me check this function properly. Now, सर स्ट्रिंग एक्सेप्शन आउट ऑफ बाउंड वो रन टाइम एरर है. हाँ, जितने भी आउट ऑफ बाउंड हैं, कॉपी साथ में अगर नहीं है तो दिस इज द बिगेस्ट लॉस. एक्चुअली पहले ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो जो स्ट्रिंग हमें मिलेगी उस पर कैरेट अप्लाई होगा. तो पहले हम देखें कि हमें कौन सी स्ट्रिंग मिल रही है. 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट. 7 पोजीशन से 9, तो देखो 5 तो ये था, 7 पोजीशन ये है, और 8 ये है, और 9 ये है. तो 7 से लेकर के 9 तक एक्सट्रैक्शन होगा, तो 7 विल बी included and 9 will be excluded. तो 7 और 8 यानी EV extract होगा, if I am not wrong. Yes, sir. क्यों दिव्यांश? EV. अब Yes, sir. EV पे कैरेट लग रहा है, सेकंड पोजीशन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करो, बट EV में सेकंड पोजीशन तो है ही नहीं. This one is 0 Yes, sir. position. Only 2 positions. Yeah, this one is 1 position. Where is the second position? Where is the second position? हमने कहा हमारी कोचिंग में there are 2 floors in my coaching. In my coaching there are 2 floors, ground floor and first floor.
हमने कहा हम लोग क्लास लेंगे कल सेकेंड फ्लोर पे, बट वेयर इज द सेकेंड फ्लोर सर? योर ऑर्डर इज आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. We cannot sit in the second floor as the building has only 2 floors, ground floor and first floor. Hope you understand. तो 0, 1 तो 0 से एक्सट्रैक्ट हो सकता है, 1 से एक्सट्रैक्ट हो सकता है, बट 2 से एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता. कैन यू प्लीज क्रॉस चेक दिस? यस सर, आई कैन क्रॉस चेक. अगर हम इसको 1 कर दें, देन व्हाट विल बी द आंसर? आई वांट क्विक रिप्लाई. आई वांट क्विक रिप्लाई. Sir, Sir, true. E. आंसर कितना आएगा? B. अब Sir, देखो true. 1 का मतलब है वेरी गुड, तो 1 का मतलब है कि V एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो अगर V एक्सट्रैक्ट हो गया Sir, true. तो इज लेटर और डिजिट V को चेक कर लेगा एंड V इज अ लेटर. तो नाउ योर आंसर विल बिकम ट्रू. थैंक यू. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. ओके, 1 मिनट. या अब हम कंपाइल कर रहे हैं और कंपाइल करने के बाद एक बार अपने आंसर्स को चेक कर लेते हैं. अब वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं आएगा डेफिनेटली, एंड माय आंसर इज कमिंग ट्रू. 1 second please. See, this false is related to the first, this true is related to the second, this false is related to third, this true is related to, and this true is related to the last, जो कि हमारा V extract हो रहा है. My all the answers is properly checking. Okay. ठीक है. Very important chapter we are discussing of Java, that is a character and string library function. Very important. 101% complete chances of asking an examination. 100% एग्जाम में आएगा. 100%. अभी तक कोई पेपर ऐसा बना ही नहीं जिसके अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस ना हो. ओके फाइन. लेट मी क्लियर ऑल दिस ड्राइंग. और हमें अपने फंक्शंस कवर अप करना है, जो रिमेनिंग फंक्शन. तो व्हाइट स्पेस वी हैव कवर्ड. नाउ यहां से कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस 2 वाले स्टार्ट हो गए. पहले इस वाले लाइब्रेरी फंक्शन थे, इस वाले सारे लाइब्रेरी फंक्शन, all the library function starting with the is produce true and false. अब यहाँ पे 2 आ गया. 2 का मतलब होता है जो भी कैरेक्टर आपने इनसाइड पास किया है उसको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. बट इफ यू आर पासिंग ऑलरेडी इन अपर केस तो ये उसको अपर केस में ही रखेगा. ऐसा नहीं है कि वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. वो उसकी फंक्शनैलिटी नहीं. इसकी फंक्शनैलिटी है कि जो कैरेक्टर आपने पास करा है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अपर केस. ऑलराइट. अब यहाँ पर ये क्या करता है, जो कैरेक्टर आपने पास किया है ये उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. सर लोअर केस में कन्वर्ट तो एक फंक्शन और है वो भी करता है. कौन सा फंक्शन करता है? टू लोअर केस. ये फंक्शन भी तो करता है. ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन convert the string into lowercase but not character. कैरेक्टर के लिए अलग से एक फंक्शन बना है, कैरेक्टर डॉट टू लोअरकेस. अंडरस्टैंड? ये this Yes, sir. function will convert the character in lowercase. There is a great difference between character and string. Don't get confused. Character और string में बहुत difference है. Character का मतलब होता है single character. String का मतलब होता है multiple character. Yes, tell me. Mariam, do you want to ask any question? This long. I have stored this long sentence in N. Understand? So first of all, I am
printing n. Then I am printing n dot to lowercase, means I am converting the complete sentence into lowercase. Then in third, n dot to uppercase. Understand? This to lowercase to uppercase library functions only for a string, not for character. सर कैसे पहचाने? पहचानने के लिए जितने भी कैरेक्टर बेस्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उनके पहले कैरेक्टर लिखा होता है। वो कैरेक्टर रैपर क्लास कैरेक्टर बेस्ड लाइब्रेरी फंक्शन के लिए ही बना है। 1 मिनट, कंपाइल। सी, अभी किसी ने पूछा था सर कंपाइल टाइम एरर क्या होती है? कंपाइल टाइम एरर वो होती है जो कंपाइल, प्लीज मेंटेन। मरियम सॉस तो खत्म हो गया, आप जाके ले रही, थोड़ा सा बच्चा होगा तो मैं तो नहीं खा सकती, गला खराब है। सी, मैंने अभी सबको म्यूट किया है, ठीक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर, यहां पर सेमीकोलन नहीं लगा है, तो जैसे ही हम कंपाइल करेंगे एरर आ जाएगी नीचे। तो कंपाइल टाइम पर जो एरर आती है उसे कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। अब जब तक हम इस एरर को रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम रनिंग फेज में नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो टुवर्ड्स द रनिंग फेज। ओके, हमने यहां पर सेमीकोलन दे दिया। अब हमारे 3 आंसर्स आएंगे। सबसे पहले तो ये सेंटेंस एज इट इज प्रिंट होगा, उसके बाद सेंटेंस लोअर केस में प्रिंट होगा, फिर सेंटेंस अपर केस में प्रिंट होगा। लेट मी शो यू द आउटपुट। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कैरेक्टर डेमो। सी, कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? ये आपका ओरिजिनल सेंटेंस था पूरा, ये आपका पूरा ओरिजिनल सेंटेंस है लास्ट तक। मैं दिखा देता हूं, बड़ा सेंटेंस इसलिए स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ा। ये सेकंड वाला जो आपका सेंटेंस है ये पूरा लोअर केस में शो हो रहा है क्योंकि इस पर टू लोअर केस लाइब्रेरी फंक्शन अप्लाइड है। ये वाला, इसमें कोई भी कैरेक्टर आपको अपर केस में नहीं मिलेगा, बराबर। अंडरस्टैंड? ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है इस पे आपका टू अपर केस अप्लाइड है, तो इसमें कोई भी आपको ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो लोअर केस। अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड। रिप्लाई प्लीज। यस सर। तीनों समझ में आ गए? ये पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं, पूरी स्ट्रिंग को, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं, ये पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग का लाइब्रेरी फंक्शन है। दिस इज बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। ओके, फाइन। अब अगर मान लो कभी कभी एज पर द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, एज पर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, आपको पूरा सेंटेंस नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर करना है। ओके, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, नॉट फाइन। नो, 1 सेकेंड, लेट मी check the internet connection. Some call was coming. Okay. Now, can you please tell, am I audible to you properly or not? Yes, sir, you are audible. Yes, Okay. sir. See, now एक क्वेश्चन आया था अभी बोर्ड में कि आपको हर वर्ड का इनिशियल कैपिटल करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस और कैरेक्टर डॉट टू अपर केस लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया था। ठीक है, अभी मैं आपको अब सॉल्व करता हूं। ठीक है, वेट, अब देखो, ध्यान से देखो, इसे मुझे हटाना पड़ेगा। आई जस्ट वांट टू कॉपी, तो ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है ये कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, मतलब जो कैरेक्टर आपने एक्स में दिया है उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और बी आपने एग्जैक्टली पास कर दिया जो कि लोअर केस में, ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। नो प्रॉब्लम।
नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपने ये दोनों फंक्शन देख लिए। आप कन्वर्ट करने के बाद इनको किसी वेरिएबल में भी रख सकते हैं। char ans is equal to character dot to lowercase x and system dot out dot print ans। अब क्या होगा, आपने क्या किया कि पहले कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस मतलब x को लोअर केस में कन्वर्ट करके ans में रखा और आप ans को प्रिंट करा। तो ans में आपका क्या प्रिंट होगा, जस्ट आई वांट टू राइट ans में आपके पास कैपिटल A है, तो कैपिटल A कन्वर्ट होके स्मॉल a में प्रिंट। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. स्मॉल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आप लोग काम करते हैं। What will be the output? So capital C. So small c, small c. नई चीज, इट्स एब्सोल्युटली न्यू थिंग। मैंने बिल्कुल नई चीज पूछ ली, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा भी। देखो x में क्या था, हाँ एक चीज और बता दें, अगर तुम चाहते हो कि लाइब्रेरी फंक्शंस पर हमें कमांड हो जाए तो उन्हें तुम्हें यूज में लाना पड़ेगा। देखो मैं यूज में लाता हूँ, ये जो अभी असाइनमेंट देता हूँ ना, लैब असाइनमेंट्स और स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस, वो सब यूजेज के लिए। एक्स में क्या है, कैपिटल ए। ऑलराइट, कैपिटल ए को आपने स्मॉल ए में यानी लोअर केस में कन्वर्ट करके एएनएस में रखा, तो एएनएस की वैल्यू हो गई स्मॉल ए। जब आप एएनएस को प्लस प्लस करते हैं, तो जब भी किसी कैरेक्टर को आप प्लस प्लस करते हैं तो वो अल्फाबेटिकल इंक्रीज करता है, अल्फाबेटिकल इंक्रीज। तो ये स्मॉल ए से स्मॉल बी हो जाएगा, फिर आप एक बार और इंक्रीज कर रहे हैं तो स्मॉल बी से ये स्मॉल सी हो जाएगा। नाउ स्मॉल सी विल बी द आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Always increase. Yes, sir. ओके, ये इसलिए बताया है क्योंकि एक टॉपिक है आपके यहाँ नेस्टेड लूप, और नेस्टेड लूप में इस तरह के पैटर्न्स भी हमारे कोर्स में हैं। अल्फाबेटिकल पैटर्न्स कहा जाता है इन्हें, और यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। तो कुछ चीजें आने वाले चैप्टर से रिलेटेड हैं जिसके लिए हम पहले से आपको प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, हम धीरे धीरे चीजों को कवर अप कर रहे हैं। अच्छा, बस एक बात थोड़ा